نبی کی بارگاہ میں اور بابا کے قلم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پوری دنیا میں شور مچا ہے کہ مسلمان بڑا پریشان حال ہے۔ جدھر دیکھو ہماری غربت کا تماشا اور ہماری غربت کا جنازہ روز جن سے اپنے قدم نہ اٹھتے ہو وہ ہماری لاش اٹھانے کو تیار نظر آتا ہے۔ میڈیا سے لے کر ٹی وی تک اور ٹی وی سے لے کے سنیما ہال تک ہر جگہ ہر گوشے میں ہماری غربت کا، ہماری مفلسی کا اور ہماری کلاشی اور بھکمری کا چرچا عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا غریب ہو گیا ہے، تعلیم سے بڑا پیچھے ہے، کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ پروپیگنڈا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ کہتے مولانا بات کیسی کرتے ہو؟ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن داڑھی ہماری چوراہے پہ نوچی نہ جاتی ہو، کوئی دن ایسا نہیں کہ کہیں کسی بہن بیٹی کی عزت و آبرو سر عام نیلام نہ کی جاتی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مسجد کے دروازے پہ اشتعال انگیز نعرے نہ لگائے جاتے ہو۔ پوری قوم رو رہی ہے اور مولانا تم بات الگ کرتے ہو۔ پوری قوم غمزدہ ہے، دکھ اور درد میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا بیوقوف ہے، تو نے قریب سے نہیں دیکھا۔ اخبار بھی بک سکتا ہے، قلم بھی بک سکتا ہے، ٹی وی بھی بک سکتی ہے اور یہ پترکار بھی بک سکتے ہیں اور مووی بنانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ بکا ہو اور یہ پروپیگنڈا ہو۔ اگر کوئی پریشان حال ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے تو حافظ دلشاد صاحب خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ آج تک مجھے بتا دو، اگر کسی کی ماں کا جنازہ دروازے پہ رکھا ہو کیا وہ بینڈ باجا بجائے گا؟ اگر کسی کے باپ کا جنازہ اٹھا ہو کیا وہ آتش بازی کرے گا؟ کیا کوئی قوم پریشان حال ہو کیا وہ اپنی بیٹیوں کے ماتھے میں اور کجنیاں نچائے گی؟ کیا کوئی پریشان حال ہو تو آتش بازی اور پھلجڑی چھوٹ گئی ہوگی؟ نہیں مسلمانوں، اگر تیرا باپ مرا ہو تو تو کبھی ڈھول تاشا نہیں بجائے گا، تیری ماں بیمار ہو تو تو کبھی گیت اور گانے نہیں گائے گا، اگر تیرا بچہ ہاسپیٹل میں ہو تو تو خوشی کے نغمات نہیں گاتا ہے۔ لیکن آپ تو کوئی شادی، کوئی منگنی، کوئی جگہ اور کوئی ایسا پروگرام نہیں جس میں تماشا نہ ہوتا ہو۔ تو جو قوم خوش ہوتی ہے، جو قوم غمزدہ ہوتی ہے وہ ڈھول تاشا نہیں بجاتی ہے۔ جو قوم پریشان ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں یا تو تم پریشان حال نہیں یا تم نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ یاد رکھو، اگر تیرا بھائی پریشان ہو تو تو ڈھول نہیں بجائے گا، ماں کا انتقال ہو تو تو ڈھول نہیں بجائے گا، تو دنیا کے کسی کونے میں چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، چاہے شام میں ہو، اگر کوئی مسلم بچہ پریشان کیا جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ بھائی کا رشتہ تو باپ بناتا ہے، کلمے کا رشتہ محمد رسول اللہ نے بنایا ہے، اور اس رشتے سے مضبوط رشتہ نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہوتا۔ لیکن آج حالات ہمارے کیا ہے حضرات گرامی؟ آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں بڑے قریب ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں علامہ شفیق صاحب کہ ہمارے جن گھروں میں مسجد کا چندہ لینے جائیں مدرسے کا تو زکوٰۃ اور فطرہ کی بھی مستحق نظر نہیں آتے۔ ان کے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا ہے 15,000 کا بڑا موبائل رکھتے ہیں، 719 کا ریچارج کرا کے رکھتے ہیں، فطرے میں غریب نظر آتے ہو، زکوٰۃ میں غریب نظر آتے ہو، لیکن بیٹے کے پاس بھی ملٹی میڈیا موبائل ہے اور بیٹی کے پاس بھی نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، آج نوجوانوں تم بیٹھے ہو، اس لیے مجھے تم سے گفتگو کرنا ہے۔ کبھی کبھی تو ہونا آتا ہے کہ ہمارے قوم کے حالات کیسے ہیں، چاروں طرف سے تم ستائے جاتے ہو اور تم سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہو۔ مسلمانوں، آج کسی سے کہو کہ نماز سیکھو جا کے، تمہارے امام بڑے اچھے ہیں، تمہارے حافظ بڑے اچھے ہیں، مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے، لیکن رات میں 2-2 بجے تک حافظ نعیم الدین صاحب 2-2 بجے تک جب کبھی جلسے سے آنا ہوتا ہے
किसी कोने में कहा जानवर न घुसे, वहां भी एक मोबाइल की तार चलती रहती है। इन जगहों पे रात में सन्नाटे में कोई नहीं आता है। फजर की नमाज में कहो तो कहते मौलाना खतरा पड़ा है, दूर पड़ती है मस्जिद, कैसे आ जाऊं। लेकिन रात में 2 बजे तू झाड़ियों में नजर आता है, नाले पे नजर आता है, सड़क के उस पार नजर आता है। एक दिन तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, कहा हज़रत कोई है? मैंने कहा गाय घुसी होगी या कोई और जानवर होगा, इसलिए कि जानवरों का दौर दौरा है। खेत में जानवर है, खलियान में जानवर है, घर में जानवर है, हर तरफ जानवर है। कहा मौलाना साहब बात कैसी करते हो, क्या जानवर भी कभी लाइट लेके टहला करता है? मैंने कहा तार चल रही है। कहा हज़रत तार चल रही है। मैंने कहा अच्छा जाओ देखो कौन है। गए पकड़ के लाए, मेरा जानने वाला नौजवान था, 20-22 साल उम्र होगी। मैंने देखा 2 बजे रहे थे घड़ी में। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे थे? चेहरा झुक गया। कहा हज़रत क्या बताऊं क्या कर रहा था। धीरे से हमारे यहाँ जो शफीक रहता उसने कहा हज़रत किसी लड़की से बात कर रहा होगा, और 2 बजे क्या करेगा। यही तो हाल हमारी कौम का हाफिज शोएब साहब, ये 2 बजे रात तक कोने में घुसे रहे और लाइट का खंबा पकड़ के ऐसे चपकते हैं, लगता है कि पूरे उन्नाव की लाइट इन्हीं के खंबा पकड़ने से चल रही है। अगर ये खंबा छोड़ देंगे ना पावर चला जाएगा। ये हाल हमारी कौम के नौजवानों का है। और माँ बाप तुम सुनो, तुम्हारा बेटा रात में 2 बजे तक घर नहीं आया, तुमने पता नहीं पूछा कि कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन जरा सा मसला होता है, कहते मौलाना हमारा ईमान बदल दो, आप तो शहर के बड़े आलिम हो। मैंने कहा क्यों? ना कौम बिगड़ती जा रही है, ये काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा घर में 2 बजे तक लड़का तेरा नहीं आया है, जिम्मेदार इमाम है, जिम्मेदार मदरसे का मैनेजर है, जिम्मेदार मस्जिद का मुतवल्ली है। अरे कब्र में और हश्र में किसी का लड़का बिगड़ेगा तो खुदा महल्ले के इमाम से नहीं उसके माँ बाप से पूछेगा, बता क्यों बिगड़ा था, तूने पता क्यों नहीं पूछा है। हाल ये है कि लड़का तेरा और जवान भाई तेरा रोड में 2 बजे तक बात करता है, और तेरी जवान बहन, तेरी जवान फुफी, जवान भतीजी, जवान बेटी छत पे बात करती है। कुछ लोग कहते हैं लामा शफीक साहब कि मौलाना साहब उनके घर न जाया करो। मैंने कहा क्यों न जाया करें? कहते मौलाना साहब उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया, मुसलमान तो है, सुन्नी तो है। कहा मौलाना साहब नहीं, उनका लड़का 2-2 बजे रात तक किसी लड़की से छुप के बात करता है, उनकी लड़की छत में चढ़ के 1 बजे तक बात करती है। कहता सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अक्सर घरों का हाल ये है, नौजवान बाहर बात करता है, लड़की छत पे बात करती है, न माँ को खबर है न बाप को खबर है। और जब कदम तेजी से बाहर निकल जाते हैं और जब किसी के साथ फरार हो जाते हैं, फिर बाबा तलाश किए जाते हैं। बाबा कोई ताबीज दबाओ तो लड़की आ जाए, बाबा कोई ताबीज दबाओ तो लड़का आ जाए। मैं कहता हूँ अगर बाबा इतने पावरफुल होते तो ये बेवकूफ बैंक से पैसा निकाल लेते, तुम्हारी जेब से ना निकालते। न तुम्हें बाबा की जरूरत है, न तुम्हें ताई की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न ताबीज दबाने की जरूरत है। अगर बेटा और बेटी को सुधारना है तो टीवी में कहानी ना सुनाना, बल्कि बेटियों को हजरत फातिमा की सीरत सुना देना और हुसैन पाक का पैगाम सुना देना, गरीब नवाज का जज्बे जिहाद सुनाना, इमाम अहमद रजा का अकीदा पढ़ा देना और कहना बेटा ऐलान कर दे दिल के रजा है, खंजरे बुखार तक के बाद आदा से कह दो खैर बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नईम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इको कम करो खुदा के वास्ते। यही हालात है ना हमारे घरों के। लोग हमसे कहते हैं, इन इमामों से कहते हैं, आप भी कहते होंगे मौलाना उनके घर न जाना, लड़की रात में बात करती है, लड़का रात में बाहर बात करता है। ये हाल हमारे मुआशरे का है। अल्लाह अकबर, न हमारी बेटी रही न हमारा बेटा रहा, सारे सब हमारे हाथ से छूट गए। ये है कि हमने उन्हें बात करने दी है, हमने नबी की सीरत नहीं पढ़ाई, सैयदा फातिमा की कुर्बानी नहीं पढ़ाई। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी फातिमा से किसी ने पूछा था कि सैयदतु निसाए अहले जन्ना, आप सारे खातूनों की सरदार हैं, आप बताओ आपने कब मुसीबत बर्दाश्त की? तो अली की बीवी हसनैन की माँ फातिमा ज़हरा कहती, हाँ आज भी मुझे याद है कि दीन के रास्ते में मैंने पहली जब मुसीबत बर्दाश्त की, मौलाना मुबारक साहब फातिमा ज़हरा कहती है मैं 8 साल की थी, मुझे किसी ने बताया कि फातिमा तुम घर में हो और तुम्हारे बाबा खाने काबा में सजदा कर रहे थे।
जाहिल दुश्मनाने इस्लाम ने, नबी के दुश्मनों ने नबी के गर्दने अतहर पर उजड़ियां डाल दी है। ऊंट की उजड़ी बड़ी भारी होती है। आने वाले ने कहा अबू जहल ने ये शरारत की, नबी उठाते हैं सर लेकिन फातिमा उठा नहीं पाते। नबी की बेटी फातिमा कहती है कि मैंने चादर तदहीर चेहरे पे ढाकी, 8 साल की बच्ची है, और कहती चेहरा ढाका, मैं खाने काबा पहुंची, मैंने देखा कि मेरे बाबा का सर सजदे में रखा है और ऊपर से अतड़ियां पड़ी है। नबी उठाना चाहते हैं लेकिन बतकाज़े बशरी उठा नहीं पा रहे हैं। माँ सैयदा फातिमा कहती मैं रोती जाती थी और नबी के गर्दने अतहर से अतड़ियां उठाती जाती थी। तेरे बाप को काटा जो है तो कलेजा चली होता है, तेरे बाप को कोई साइकिल में जरा सा मोटरसाइकिल टच करे तो तू लड़ाई पे आमादा हो जाता है। लेकिन मक्के में जो सजदा ज़ात कर रही थी और जिसके जिसमें अतहर पर उधर अतड़ियां डाली गई, वो ज़ात वो है कि मक्के के सरदार कहते हैं कि जब नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब नबी को लेकर खाने काबा की तरफ पहली मर्तबा बढ़े थे तो हम ये ना जान पाए कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। काबा की तरफ नबी झुक रहे हैं या नबी के लिए काबा झुक रहा है। इमाम अहमद रज़ा ने तो कहा जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत बिलक। तवज्जो रखें, सैयदा फातिमा कहती है मैंने चादर रखी, चेहरा ढक के आई। आप देखें ना करबला में जब दमिश्क में सैयदा सकीना को गिरफ्तार करके ले जाया गया, हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल मिले, कहा बेटी तेरे नबी का दीवाना हूँ, मैं सहाबी हूँ, अहले बैत का गुलाम हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? तो सैयदा सकीना ने कहा अच्छा अगर कुछ मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चादरें छीन ली गई, बेपर्दा है, हमारे अब्बा जान के सर को आगे कर दे ताकि यजीदी आगे हो जाए और हमारी पर्दापोशी हो जाए। ये हाल था। और सलाम करो इराक की उस नन्ही शहजादी को जब अमेरिका ने बम बरसाए, पत्थरों का वो शहर, गौसे आजम की वो सरजमी, इमाम हुसैन का जहां जिसमें अतहर आराम फरमाए, जहां इमाम आजम जैसा अजीम इमाम बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं लगाए, उस सरजमीन पर जब जालिम अमेरिका ने बम बरसाए थे तो कुछ लोग भगने लगे और अमेरिका की जालिम मीडिया ने जब फोटो खींचना चाहे, एक 16 साल की मुस्लिम दोशीदा ने कहा था वो पत्रकार भाई मुझ पर करम करो, मेरा फोटो न खींचो। कहा क्यों न खींचो? कहा जल्दी में मैं दुपट्टा भूल गई हूँ, मेरा चेहरा नंगा है, मैं बेपर्दा, फोटो खिंचाना गवारा नहीं करती। हमारी कौम की शहजादियों का हाल ये था। और जब इस तरह की बेटी हमारे दरमियान होती है तो पैदा होने वाला या तो बहुद्दीन ज़करिया होता है या इमाम अहमद रज़ा पैदा होता है। मुसलमानों अपनी बेटियों को पर्दा करा। आज हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना साहब उनके घर न जाना, माहौल खराब है, लड़का बात करे, भाई बात करे, बेटी बात करे, फूफी बात करे, भतीजी बात करे, छुप के बात करती है। इन उलमा से पूछो, मैं कभी छुप के बात करने का मुखालिफ नहीं हूँ मौलाना मुबारक साहब, न मैं कभी नाजायज कहता हूँ। नौजवानों मेरी बात सुन लेना जरा मोहब्बत से, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम छुप के बात करो। अपनी बहन से कहना कि मेरी बहन तू भी छुप के बात कर, अपनी माँ से कहना मौलाना ने कहा है कि छुप के बात कर, लेकिन जरा तरीका बदल लेना, जरा रास्ता बदल लेना। अगर मोबाइल से छुप के लड़का लड़की से बात करे या लड़की लड़के से बात करे तो माशरा बदनाम होता है, घर बदनाम होता है। लेकिन रात के सन्नाटे में अगर छुप के बंदा मुसल्ले पे सर रखकर परवरदिगार आलम से बात करे तो फिर वली बन जाता है, इमाम अहमद रज़ा बन जाता है। तुम रब से छुप के बात करो, रब से छुप के बात करो। आज हमारी बेटियां उन नाव की भी है, कितने भाई हैं तुम्हारी गैरत नहीं जाती है, कैसे बाप हो कैसे चचा हो, तुम्हारी भतीजियां तुम्हारी बहनें बेटियां फेसबुक में और मौज में छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाती है।
और डालती है ना कपड़े छोटे करके ताकि मशहूर हो जाए, फेसबुक हमारा चैनल चलने लगे तो हमें भी फेसबुक कंपनियां कुछ चंद दिरहम दे दे, चंद सिक्के मिल जाए। यूट्यूब पे चैनल बनाया, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, वो शॉर्ट कपड़े पहनकर वीडियो डाले हैं। एक सूफिया अंसारी तो बड़ी मशहूर है ना लड़की, जो डालती हमेशा वीडियो, जाने मेरे मोबाइल में उसी की क्यों आते हैं। लेकिन तवज्जो रखना और मेरी बात बड़े दिल से सुनना और सुकून से। मैं बहनों तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने शॉर्ट वीडियो बनाए, तुमने कपड़े छोटे के उतारती गई, तुम्हारी इज्जत भी गई, तुम्हारा इस्लाम भी गया, तुम्हारा दीन भी गया। मजहब इस्लाम की इज्जत को तुमने तार तार किया, कपड़े उतर गए, सारे बाजार तुम नीलाम हो गई। न खानदान इज्जतदार रहा, न तुम इज्जतदार रही, लेकिन न शोहरत मिली, न दिरहम मिले, न दीनार मिला, न खुदा मिला, न विसाले सनम। अरे मशहूर होना है तो कपड़े उतार के मशहूर नहीं होता है। तुमने कपड़े उतारे और मशहूर न हुई। और कर्नाटक की बिजनौर की उस बेटी को सलाम करो जिसे दुश्मनों ने घेरा, लेकिन उसने नकाब उतारा नहीं, चेहरा ढका और नारे तकबीर लगाया। पूरी दुनिया उस बेटी को सलाम करती नजर आती है और यहाँ से लेके आज तक हर शख्स उस कनीज़े फातिमा को सलाम करता नजर आता है। इस्लाम की शहजादियां, मुसलमानों उस बेटी ने बता दिया है कि इज्जत मेरी बहनों, शोहरत कपड़े उतारने से नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बनने से मिलती है, शरीयत मुस्तफा पे अमल करने से मिलती है। इसीलिए किसी ने कहा था कि जब कर्नाटक में एक बेटी ने इन हालात में पर्दा नहीं छोड़ा, इतनी मोहतरम हो गई, तो अली की बेटी ज़ैनब ने जब हुसैन की लाश